So now we are going to start chapter 2, that is chapter 2, that is principal stress and principal strain, right? This is a very important topic with respect to the GATE examination. This one is a very simple condition. So before the start of this, to understand what is principal stress and what is principal strain, let us first understand what basically stress is and what strain it is there. In a simple term conditions को अगर हम समझने की कोशिश करें, so we can say that कि force per unit area, that is defined as your stress, right? And stress is directly proportional to strain up to proportional limit, and this is defined as Hooke's law, right? Similarly, stress has been further divided in two groups, that is normal to the area, that is force perpendicular, and along the plane, that is your tangential. So based on these two criteria, we can say that this is a direct stress. So normal stress is defined, and similarly this is defined as your shear stress, right? So what is the impact of normal stress? So if we are going to apply a force on a particular body, this is a tangential force, and if we apply a force on a particular body, you can see that this is an axial force applying on this particular body. अब इस axial force को अगर समझें तो only force is applied only in one direction. So suppose if I say this is your x direction, this is your y direction. The force is applied only in x particular direction, right? So based on that, we can say that the body internal resistance force is defined as an stress, and that value sigma is defined as P by H, right? Now, as we all know that stress is basically a tensor quantity, right? When we're talking about tensor, it means what? It has magnitude, it has direction, and most importantly, it has plane, right? So we can see that अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसीडर करें तो आप क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो ई मैग्नीट्यूड का, राइट? और इसका इफेक्ट इस पर्टिकुलर प्लेन पे ऑब्जर्व कर रहे हो. यू कैन सी दैट दिस इज द प्लेन जहां पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है. तो ये जो प्लेन है दैट इज कंप्लीटली क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इस कंप्लीटली क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, राइट? You can also observe that in this particular plane, in this plane में आप observe करो, there is one more plane is also to be there. This is one of the thing. So these two planes have 90-degree angle, right?
अगर ये दोनों प्लेन को कंसिडर करें तो इन दोनों प्लेन के बीच में देयर आर n नंबर ऑफ प्लेन इट इज टू बी देयर, n नंबर ऑफ प्लेन इज टू बी देयर, राइट। तो आप हमको ये समझना है कि हर एक प्लेन में कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ आवर फर्दर कैलकुलेशंस, राइट। बेस्ड ऑन दिस देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, एक कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया डेवलप होगा, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, और उसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेस में जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज डिफाइंड एज योर प्रिंसिपल strain, right? So let's first understand with the help of a simple example, right? Suppose there is a body. Suppose if I draw a body, right? Simple case, और uniaxial loading conditions को apply किया गया है. In this particular body, you can see that a force P is acting, right? Along these conditions, we can see that sigma is equals to force per unit area. Simple, along this perpendicular plane. Suppose I take an plane which is of angle theta degree from the normal axis, right? So if we are going to consider this, so we are consider some terms. ये हम theta जो angle यहाँ पे consider कर रहे हैं, that is defined in this particular direction, right? So if I say theta is counterclockwise, it is to be of positive value. If I say theta is equals to clockwise direction, it is of negative value. That is the sign convention that we are going to take, right? So इस particular plane को अगर आप देखें तो what is the value of stress in this particular plane? We can say that sigma is equals to force per unit area, right? तो इस plane पे force का value कितना है? P by A. Now we need to find out what is the value, what is the stress in this particular plane, right? तो फॉर दैट हमने क्या किया, एक एंगल को कट किया, इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो चलो अब हम इसका एक कटेड पार्ट के एंगल्स को शो करते हैं। सपोज दिस इज कंडीशन और ये वैल्यूज, ये दिस इज द प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। दिस वन इज द एंगल थीटा और दिस वन इज द फोर्स ई जो कि एक्ट कर रहा है, राइट। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स, राइट, तो दिस इज द फोर्स जो आपका पी एक्ट करेगा, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, सपोज एक एग्जांपल कंसीडर करें, हमने बोला कि जो ब्लॉक के परपेंडिकुलर, दिस इज द एरिया इफ वी आर कंसीडर, इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। तो आपका सिग्मा एन की वैल्यूज क्या हो जाएगा, पी बाई ए। सिमिलरली जो वैल्यू आपका इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है अलोंग द प्लेन, तो उसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे, टाउ, एंड दैट अगेन वैल्यू इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो हम यहाँ पे ये कंसीडर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू, ये इसके अलोंग कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट। सो दिस इज ऑफ एंगल थीटा, सपोज दिस इज ऑफ एंगल थीटा, राइट। this a this is defined as a, and this is, सपोज करो a p कंडीशंस को डिफाइन किया, राइट। जस्ट टेल मी, अगर हमने बोला कि इस दिस इज द a वैल्यू, तो इस प्लेन का आपका कंपोनेंट क्या होगा, कैन बी से दैट, अगर आप इसको ट्राइंगल को कंसीडर करो, दिस इज टू बी ऑफ ई एफ
जी, राइट। ई एफ जी को कंसिडर करो, तो ये थीटा एंगल है, तो दिस इज योर बेस, this one is your base, and this one is your hypotenuse. So cos theta can be written as cos theta is equals to base upon hypotenuse. तो base की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एफ अपॉन ई जी। तो ई एफ इज इक्वल्स टू ए, एंड ई जी जो कि एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन है इज डिफाइंड एज ए पी। देयरफॉर area plane area is defined as a by cos theta, right? So we can see that कि अगर इस प्लेन का एरिया अगर आप कंसिडर करो तो एरिया क्या होगा, a बाई कॉस थीटा। अच्छा, आप एरिया कैसे कंसिडर कर रहे हो, देखो दिस इज अ पर्टिकुलर कंडीशंस को अगर हम समझें तो इसकी जो थिकनेस है उसको वन कंसिडर किया, तो एरिया क्या होगा, एरिया देखा जाए ऑफ दिस वन, तो ई एफ इंटू वन, राइट। तो जो वन है दैट इज द यूनिट थिकनेस वी आर डिफाइंड, दैट इज वाई एपी को भी जो एरिया कैलकुलेट किया गया है तो वो ए बाई कॉस थीटा को कंसीडर कर लिया गया। नाउ इज दैट क्लियर, ओके। नाउ अब ये जानने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपका नॉर्मल डायरेक्शन में कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अभी आपने देखा कि जो फोर्स पी एक्ट कर रहा है, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल थीटा यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, पी cos theta. Now this p has two components, one is perpendicular to the plane and other one is your along the plane, right? So this also having p sin theta. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आपने एक एंगल कट किया है और इस एंगल कट करने पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपको क्या मिल रहा है, पी कॉस थीटा, और अलोंग द प्लेन आपको क्या मिल रहा है, पी साइन थीटा। तो अब समझो कि इस पर्टिकुलर प्लेन पे जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी में वो कौन सा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो कैन वी से दैट सिग्मा एन इज द स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है, पी कॉस थीटा बाय a by cos theta. It means what? It is to be written as P by a cos square theta, which is also to be written as that normal stress acting on this particular plane is defined as stress into sigma cos square theta, right? So this is the one part of the condition. Now विच इस ये परपेंडिकुलर प्लेन पे जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे समझें तो हमने क्या देखा कि अलोंग द प्लेन एक स्ट्रेस यहाँ पे फर्दर डेवलप हो रहा है। तो हमको ये पता है कि अगर अलोंग द प्लेन की बात कर रहे हैं तो उस स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस बोला जाता है। तो शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वी कैन राइट शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ, राइट। अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स यहाँ पे क्या है, पी साइन थीटा अपॉन एरिया क्या है, ए बाई कॉस थीटा। So here we can write that P by A sin theta into cos theta. That means tau is equals to, if I write 2 above and below 2, so that can be written as P by 2A sin 2 theta, which is again equals to sigma by 2 sin 2 theta. So this is the value of shear stress, right? Now understand this term. आपके इनिशियल कंडीशंस को अगर आप समझने की कोशिश करो, इन इनिशियल कंडीशन यू कैन सी दैट यू हैव अप्लाई अ स्ट्रेस which is acting only along the axial direction.
यस, सपोज आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, विच इज एक्टिंग अलोंग दिस। तो आपने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर आपने सिर्फ फोर्स अप्लाई कौन किया है, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। और आप इस पर्टिकुलर प्लेन पे अगर कोई स्ट्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश करो किसी एंगल पे, तो आप क्या देख रहे हो कि वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है और शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, राइट। आप कोई भी एंगल इसमें नोट करो, आपको ये जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है किसी भी एंगल पे डेवलप हुआ है, तो आप किसी भी एंगल पे कैलकुलेट वैल्यू कर सकते हो कि किस भी पर्टिकुलर प्लेन पे या किस पर्टिकुलर एंगल पे आपके बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो होगा, कितना अमाउंट का मैग्नीट्यूड होगा, पहला। दूसरा, दिस इज ऑल्सो हैविंग पासवर्ड, you can see that this is what is the maximum value of shear stress in this particular case. If can we write tau max is equals to sigma by 2 sine 2 theta, right, sine 2 theta. It means what, tau max will be maximum when sine 2 theta की values 1 होगी. It means 2 theta that is equals to of 90 degree, that is theta is equals to 45 degree. It means what, your shear stress will be maximum, your shear stress will be maximum when sine 2 theta is value 1, and that maximum values is sigma by 2 half of this value, राइट। तो जब भी आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो आप क्या देखते हो कि एट 45 डिग्री, राइट, एट 45 डिग्री योर shear stress value is maximum, and that is why this body will fail because of shear stress, राइट। वो वैल्यूज को सस्टेन नहीं कर पाएगा, shear stress की वैल्यूज के बेसिस पे ऑलरेडी वो फेल कर देगा।